سب سے بڑی تاریخ ہے یہ اس وقت کی منظر کشی ہے جب ہمارے اور آپ کے نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے بعد شہادت رسول اللہ دربار میں گئی. یہ پوری منظر کشی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری اہل بیت علیہ السلام کی منظر کشی ہے. آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک تمام چیزیں اس میں لوگوں نے نقل کی یہاں کی, اور باقاعدہ ویسا کا ویسا محسوس ہو رہا ہے جب رسول اللہ کے زمانے میں ہوا. اس طریقے سے ظاہر حسین کو تمام تبرک بانٹا جا رہا ہے. دیکھو نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا, نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب, ہر انسان اس لائن میں دیکھے گا آپ کو. اور یہ سب خدمتیں امام حسین علیہ السلام ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھو کیا کیا نہیں ہے خدمت میں, کیا کیا نہیں ہے مولا کے چاہنے والوں کی. یہ یہاں کی موسٹ فیمس چائے ہے. لوگ زیادہ تر چائے کو پینا یہاں پر پسند کرتے ہیں. اس کو بلیک ٹی کہا جاتا ہے اپنے انڈیا میں. یہ ہر جگہ آپ کو یہ چائے نظر آئے گی. دیکھو الحمدللہ یہ ظاہر حسین کے لیے میڈیکل کیمپ کا انتظام. انا من الہند. آئی اسپیک اے ہماری طرز کا. یو اسپیک ہمارا بولا کربلا. کربلا بولا ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا موقف تھا جہاں ہم پہنچے تھے صبح کی 4 بجے. ہم نے یہاں پر نماز ادا کر کے یہیں پر آرام کیا تھا, اور ابھی ہم نکلے ہیں الحمدللہ نماز ادا کر کے واپس. اور یہ راستہ جانب کربلا جا رہا ہے. اور یہاں کا ٹیمپریچر اور انڈیا کے ٹیمپریچر میں کافی فرق ہے. ابھی یہاں آلموسٹ 47 ٹیمپریچر چل رہا ہے, لیکن دیکھو اس کی دھوپ, دیکھو اس کی تپش, دیکھو. اور ایک طرف زائرین کی محبت دیکھو, ہمت دیکھو کہ اس دھوپ میں بھی, اس تپتی دھوپ میں مولا کی محبت میں زائرین اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے صرف امام حسین کی محبت میں. اور ہر طرف خدمت ہیں, ہر طرف ظاہر حسین کے لیے ایسا انتظام پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. دیکھو کیا کیا نہیں ہے نعمتیں, کیا کیا نہیں ہیں زائرین کے لیے جو ہم کبھی خرید کر نہیں کھائے, وہ آج ہمیں پھر بھی مل رہا ہے الحمدللہ. یہ دیکھو سبحان اللہ, ایسے فروٹس, ایسی نعمتیں اس زائرین کے لیے رکھی گئی ہیں. مولا ان عراقیوں کو, ان خدمت گزاروں کو سبھی کو سلامت رکھیں. اور الحمدللہ ہم نے یہاں رات بسر کی تھی. اب ہم انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد یہاں سے رواں ہوئیں گے. اور ہماری اب جو منزل رہے گی وہ منزل رہے گی 260 موقف. اور انشاءاللہ 260 موقف کیوں ہماری منزل رہے گی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ ابھی ہمارا 72 موقف تھا جہاں ہم نے رات بسر کری. اور انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم نماز ادا کر کے مولا حسین کے دربار کی جانب جائیں گے. ابھی کچھ خدمت ادا کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سبھی مولا کے چاہنے والے زہر دربار حسین کی جانب رواں ہے. یہ مولا کے چاہنے والے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے پرویز بھائی ہیں. اب ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو یہاں پر آ کر کیسا لگا, ان کی فیلنگز لوگوں تک شیئر کریں گے, یا ہمیں ایکسپلین کرائیں گے کہ یہاں پر آ کر ان کو کیسا محسوس ہوا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر آ کر کیسا محسوس ہوا. یہاں پر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. سرزمین عراق میں آ کر یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کیسے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں نجف سے کربلا لوگ جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے. اور
किस तरीके से लोग यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इन सबको आबाद व शाद रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ पर रात बसर की थी वो पोल था 72 और अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं। अब हमारी मंजिल है 260 मौक़िफ़। 260 मौक़िफ़ इसलिए कि वहाँ पर तारागढ़ दरगाह अजमेर शरीफ राजस्थान इंडिया की जानिब से एक मौक़िफ़ लगाया गया है, जहाँ पर तमाम तारागढ़ दरगाह के खुतामों की जानिब से इसको लगाया गया है। इंशाअल्लाह वहाँ जाकर हमारी वो मंजिल रहेगी, वहाँ की खिदमत हम आपको दिखाएंगे। वहाँ भी लोगों की खिदमत जिस तरीके से तमाम मौक़िफ़ों में अदा की जा रही है, मौला के चाहने वालों की खिदमत, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इसी तरीके से लोगों के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है। और अभी हम निकल चुके हैं करबला की जानिब। मंजिल हमारी 260 मौक़िफ़ रहेगी। अब हम यहाँ से सीधा इंशाअल्लाह 260 मौक़िफ़ पर जाके रुकेंगे और मीरा साहब का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे, वहाँ कैसे कैसे इंतज़ाम मौला हुसैन के ज़ायरीनों के लिए खुदामों की जानिब से रखा गया है इंशाअल्लाह। और आज के जो तमाम मौक़िफ़ रहेंगे, तमाम जो खिदमतें रहेगी वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। तो इंशाअल्लाह वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ और वीडियो को, चैनल को लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे और आपके ज़रिए लोग यहाँ की मंजर कशी और कैफियत को देख सकें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारा ये काम आपको पसंद आया होगा। तो लोगों तक पहुँचाएँ, वर्तमान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके ये वीडियो जितना हम शेयर करेंगे उतनी हमें सवाब भी मिलेगा, क्योंकि ये नेकी का काम है। लोग हमारे ज़रिए यहाँ की कैफियत और रूहानियत को जज कर रहे हैं, यहाँ का तमाम मंजर कशी देख रहा है इंशाअल्लाह। और ऐसे ही हम 1452 पोल जब कंप्लीट करते रहेंगे, जितना जितना वक्त मिलता रहेगा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में उतना हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। ये देखो इनकी खिदमत है, मौला इनकी खिदमत। ये देखो कि हर एक ज़ायर को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। मौला इनकी खिदमतों को कबूल करें और इनकी रोज़ी रोज़गार में मौला बरकत दे इंशाअल्लाह। हर एक जगह पर ज़ाहिर की खिदमत है, क्या क्या खिदमत में नहीं, मौला इनकी खिदमतों को कबूल करे और इनकी तमाम परेशानियों को मौला दूर करे। मौला इनको हमेशा तौफ़ीक़ात देते रहे, इसी तरीके से ज़ायरीनों की खिदमतें अंजाम देते रहे इंशाअल्लाह। What is this? फलाफल। Yes? फलाफल है, फलाफल। फलाफिल। ये फलाफिल है, यहाँ का शायद कुछ खाने का है। बहरहाल दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ये मौला के ज़ायरीनों की खिदमत जगह जगह पर। ये दो मेरी ज़ुबान थक जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोगों के बारे में नहीं बता सकता। क्या खिदमत है भाई, क्या खिदमत है, अनबिलीवेबल। मतलब कभी जहन में सोचा नहीं था कि कभी आंखें इन सब चीज़ों को देखेगी। खिदमत इनसे सीखो, खिदमत किसी कहते हैं ज़ायरीन की, मेहमान की खिदमत इनसे सीखो बाबा। करोड़ों की मजमे की खिदमत करना, कोई मैं क्या बताऊँ, अब वो लफ्ज़ ही नहीं है इनके बारे में जो बयान करूँ। मौला इनको बस सलामत रखें, इनको लंबी लंबी उम्र दें, इसी तरीके से ये मौला के ज़ायर की खिदमतें करते रहें इंशाअल्लाह। देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या है ये महसूस करा रहा है कि गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों पर कितना जुल्म हुआ है। इन्होंने कितनों की शहादत दे दी, लेकिन मजलूम का साथ नहीं छोड़ा। ये देखो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला इनको सलामत रखें। ये डोनेशंस मौला इनको सलामत रखें। यमन, लबनान, गाज़ा जैसे लोगों पर जुल्म हुआ, इन लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लोगों की शहादतें दी, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं बढ़ाया। मौला इनकी जज्बों को कबूल करे।
ये देखो चीज़ उन्होंने हमें दिए, رغم القصف مستمر الموكب अल्लाह इनको सलामत रखें, तमाम मुसीबत से महफूज रहे मौला। अल्हम्दुलिल्लाह हम 72 मौक़िफ़ से निकल के 129 मौक़िफ़ पर पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। मैंने वहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ वीडियो बनाई है जो मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन एक बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मैं क्या पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि इस ज़मीन पर करोड़ों की तादाद में लोग इमाम हुसैन के इश्क में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में पैदल चलकर करबला की जानिब जाते हैं। इस करोड़ों की तादाद में कोई एक अफराद भी ये नहीं कह सकता कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ या मुझे किसी चीज़ का एहसास या दर्द है। सब इश्क हुसैन में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में करबला की जानिब रवां हैं। मौला की मोहब्बत में यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, इराक़ से जो ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी कंट्री के लोग तो यहाँ खिदमत करते हैं, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, और काफ़ी लोग यहाँ दूसरी कंट्री के लोग यहाँ ज़ाहिर हुसैन की खिदमत कर रहे हैं। इमाम हुसैन के ज़ाहिर की खिदमत यहाँ लोग कर रहे हैं। उनमें करोड़ों की तादाद में क्या क्या नेमतें हमने देखी, क्या क्या चीज़ें हमने देखी ज़िंदगी में। कभी जो चीज़ हमने खाई नहीं या हमने कभी देखी, वो यहाँ हमें देखने को मिल रही है, खाने को मिल रही है। ये सब मौला हुसैन का करम है, उस करीब हुसैन का करम है। एक बात हमेशा आप लोग भी इस बात को नोट करते हैं, मैंने भी इसको नोट किए कि जब यहाँ पर किसी भी जगह पर, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो या किसी कोई सा भी मुल्क हो, सिर्फ इस शहर को छोड़कर, इस देश को छोड़कर जब कहीं पर एक जगह क्राउड जमा होता है, एक जगह जब लोगों की तादाद जमा होती है, करोड़ों की तादाद हो या हज़ारों की तादाद हो, तो उस जगह पर लोग अपनी चीज़ों का दाम बढ़ा देते हैं, दुगना तिगना कर देते हैं, दुगना तिगना दाम कर देते हैं। लेकिन ये करीम हुसैन है, ये हुसैन के अज़ादार है, हुसैन के ज़ाहिर है। यहाँ एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इमाम हुसैन का करम है। हमारी ज़ुबान से निकलेगा नहीं, वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी कुछ हो। अभी मैं कुछ देर पहले देख कर आया, वहाँ पर लोगों ने फ़िलिस्तीन, गाज़ा और लेबनान के कुछ स्टिकर लगा रखे थे, लोगों के जो उन पर जो जुल्म हुआ उन्होंने वहाँ पर दिखाया। एक बात हमेशा याद रखना, इन लोगों ने कितने लोगों की शहादत दे दी, कितने लोगों को कुर्बान कर दिया, लेकिन मज़लूम का साथ नहीं छोड़ा। जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए अपनी शहादतें दे दी, अपने जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन इन्होंने मज़लूम का साथ नहीं छोड़ा। ये है असल हुसैन के चाहने वाले। और इन्होंने आज भी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इंसानियत इस दुनिया में आज भी ज़िंदा है। इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, औलाद रसूल है, औलाद अली है। दुनिया को आज भी इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम औलाद रसूल हैं। अब इंशाअल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे। हम जो अब जा रहे हैं, अब जो हमारी मंजिल रहेगी वो मंजिल है हमारी 260 मौक़िफ़। 260 मौक़िफ़ मैंने आपको बताया है कि वो हिंदुस्तान की सरज़मीन, अजमेर शहर की ऊंची सबसे पहाड़ी तारागढ़, जहाँ फर्जंद ज़हरा सरकार मीरा सैयद हुसैन का दरबार है, उनकी जानिब से लगाया गया है। और ये खिदमत का शरफ़ सरकार मीरा सैयद हुसैन के फैज़ करम से ही खुदाम मीरा को मिला है, गुलाम मीरा को मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, ये बाइस शरफ़ है कि इस सरज़मीन पर ज़ाहिर हुसैन की खिदमत का मौका मिला। इंशाअल्लाह अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ लोगों की खिदमत की जा रही है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, मैंने आपको काफ़ी मौक़िफ़ दिखाए, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर भी इमाम हुसैन के ज़ाहिर की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर जाएंगे और आपको वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। अभी हमें वहाँ पहुँचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी या उससे कम में भी इंशाअल्लाह हम पहुँच सकते हैं। और हमारी मंजिल वही रहेगी और हमारा सबसे बड़ा मकसद वहीं पर पहुँचना है। उसके बाद हम वहाँ हमारा 1 से 2 दिन का स्टे रहेगा, फिर इंशाअल्लाह हम आगे रवा होंगे, आगे की चीज़ भी आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँचेंगे। जो चीज़ें हमें दिखती रहेगी इंशाअल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। और यहाँ वीडियो बनाने का मकसद इसलिए क्योंकि बाहर ज़्यादा क्राउड है, लोगों की आवाज़ के कारण सही
आवाज़ आप तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मौके पे 120 में यहाँ बैठा, थोड़ा रेस्ट किया और आप लोग को ये बताया कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं मौक़िफ़ नंबर 260। इंशाअल्लाह रास्ते की तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे 260 नंबर की जानिब। और मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसलिए जितना हो सके मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूँगा और यहाँ की थोड़ी थोड़ी मंजरकशी मैं ऐड करता चलूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरी लास्ट वाली वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा की हो गई थी और अब नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो, इसलिए मैं 30 मिनट से पहले इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा और जब 260 मौक़िफ़ नंबर पर पहुँच जाऊँगा तो वहीं पर ख़त्म कर दूँगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग के अंदर मैं वहाँ की खिदमत आपको बताना है। ये देखो सब मौला की चाहने वाली ज़ायरीन मौला की मोहब्बत में, इश्क़ हुसैन में करबला की जानिब रवा है। ये देख सकते आप, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में जा रहे हैं। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में जा रहे हैं। मौला इनके सफ़र को आसान करे, इन सब को महफूज रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह अब हम थोड़ी थोड़ी वीडियो ऐड करेंगे, फिर इंशाअल्लाह डायरेक्ट मौक़िफ़ नंबर 60 पे हमारी मुलाकात होगी। करबला शहर नजब से मैं पढ़ूँगा, गर्मी हो सर्दी हो मैं पैदल ही चलूँगा, राहों में ज़फ़ारों की खिदमत में करूँगा, परचम अब्बास उठा कर मैं चलूँगा, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे। ये देखो माशाअल्लाह हर तरफ मौला की ज़हर की किस तरीके से खिदमत हो रही है। मौला इन सब मोमिनीन को सलामत रखें, इतने मजमे में ये खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मौला इनकी खिदमतों को कबूल करें, मौला सबको सलामत रखे, महफूज रखे। आफ 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 मौला सलामत रखे। इनकी उम्र से अंदाज़ा लगाओ कि कितनी मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से। इस उम्र में लोग चलकर अपना कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मोहब्बत देखो इमाम हुसैन से। इस उम्र में इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए पैदल सफ़र करके जा रहे हैं। मौला इनके इस जज्बों को सलामत रखें, मौला इनको और हिम्मत दें और अपने दरबार में बुलाए। वो यकीनन इमाम हिम्मत ताकत देते हैं, ये बात कोई भी झुठला नहीं सकता। यकीनन इमाम हिम्मत दे रहा है तभी इस सफ़र को तय किया जा रहा है, वरना किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो 20 किलोमीटर की दूरी पे चलकर अपने आप को संभाल सके। ये सब इमाम का करम है, इस मज़लूम इमाम का करम है कि ज़ायर जब ज़ियारत के लिए जा रहा है तो इमाम उसको ताकत दे रहा है, इमाम उसको खाने को दे रहा है, इमाम उसको पीने को दे रहा है, इमाम उसको हर एक चीज़ जो इंसान कभी गुमान में नहीं ला सकता वो उसको मिल रही है। सो रहा है तो उसको सब कुछ मिल रहा है, उठ के बैठ रहा है तो उसको सब कुछ मिल रहा है। ये देखो क्या क्या खिदमतों को अंजाम दे रहा है। और ये कोई मामूली लोग नहीं जो लाइन लगा के खड़े हुए, ये ख़ुद अरबपति करोड़पति लोग हैं, लेकिन बस इमाम का तबरुक है, मौला की नज़रें तो लाइन लगा के खड़े हुए। मौला इनके जज्बों को सलामत रखें, मौला सबको खुशहाल रखें। ये हमारे भाई मिले कहाँ, इराक? لا ايران ईरान, ईरान, शिराज, ओ, शिराज। वाह वाह, आई लव ईरान। اخي या मौला सलामत रखें। चुके हैं और हमने काफ़ी सफर तय कर लिया है। हमने जगह पर मिले हमारे मेंबर साहब इमरान भाई, और ये यहाँ पर सेकंड हमारा है। अब इनसे हम पूछेंगे तो यहाँ पर आकर कैसे महसूस हुआ, ये हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे इंशाल्लाह इमाम हुसैन में दरबार से। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या बताएं कि आप यहाँ सेकंड टाइम हमारे आपको यहाँ पर कैसे महसूस हुआ? यहाँ आने से रूह बर्दाश्त की वो जिसमें सुकून मिलता है। ये सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है, ये सफ़र रूहानी सफ़र है, ये जन्नत का सफ़र है। एक जन्नत से लेके
दूसरे जन्नत के सवाल है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ये सब मौला के मोहब्बत में ही लोग आ रहे हैं। इसको सबर इश्क कहते हैं। हर महीने इमाम हुसैन इस्लाम की याद में सब लोग कारवां रवा दवा है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये करोड़ों की तादाद में लोग इमाम हुसैन के दरबार में जाने कब आए? क्या आपको लगता है कि करोड़ों की तादाद में कोई भूखा होगा या कोई प्यासा होगा या कोई कैसा भी कोई एहसास होगा? मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नेमतें परवरदिगार की नेमतें मौला बढ़ रही है। खाना ज्यादा है, आदमी कम है। बेशक बिल्कुल सही फरमाया। इतनी नेमतें परवरदिगार आलम इमाम हुसैन के सदक़े में अता कर रहा है कि हमने कभी सोची भी नहीं होती। और वो नेमतें जो हमने कभी नहीं समझी थी आज वो हमें इस जमीन पर मिल रही है। बेशक वो करीम हुसैन हमें क्या से क्या अता कर रहा है। और करीम हुसैन के लिए करीम भी एक छोटा लफ्ज़ हो गया, वो हुसैन जिसके बारे में लफ्ज़ ही नहीं है हमारे पास, तो हम अब तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे 260 मस्जिद के लिए एक लास्ट वीडियो बनाएंगे, फिर हमारी वीडियो को हम वहीं इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। الولي ولا فتى إلا علي حيدر ولي माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये ज़ाहिर हुसैन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके से क्या क्या खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है, मौला इनकी खिदमतों को कबूल व मकबूल फरमाए। ये देखो सुभान अल्लाह। मौला तमाम इन लोगों को सलामत रखें, इनके जज्बों को, इनकी हिम्मत को, इनकी खिदमत को मौला कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। मौला सलामत रखें इन सबको। ये जूस है, बड़ा ही टेस्टी जूस हमें मिला है। मौला इनकी खिदमत को कबूल करें माशाअल्लाह। हम सरज़मीन इराक़ में मौजूद हैं और हम इसके सफ़र में रवाना हो चुके हैं और हमने 250 से ज़्यादा पोल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दी है। हम पे आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम वो शहीद है जिन्होंने दीन इंसानियत में अपनी जान की कुर्बान की। ये तमाम वो शहीदा ईरान के जान को कुर्बान कर देते हैं। आज हम आपसे जिक्र कराते हैं उन सब शहीदों के तमाम तो आप देख रहे हैं और गाजा जैसे मुसलमानों की इमदाद करते हुए अपनी जान आज यहाँ बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते तस्वीर सलाम अलैकुम। इस वक्त मैं सरज़मीन इराक़ में मौजूद हूँ। नजब से करबला पैदल मैं मशी के लिए जा रहा हूँ। यहाँ इराक़ के लोगों ने ये पूरी मंजरकशी बनाई है जो नबी अल्लाह से लेकर रसूल अल्लाह के पहले से लेकर बाद तक और इमाम हुसैन की शहादत तक पूरी तारीख़ उन्होंने यहाँ पर बनाई है। लेकिन इस तारीख़ में जो सबसे बड़ी तारीख़ जो इन्होंने बनाई है, जो इन्होंने यहाँ पर कैप्चर करके रखा है, जिसे देखकर मेरी रूह मिल गई और मेरे जिस्म भी लिया। तो पूरी तारीख आप देख लो, सबसे बड़ी तारीख है ये उस वक्त की मंजरकशी है जब हमारे और आपके नबी की बेटी अपना हक मांगने बाद शहादत रसूल अल्लाह दरबार में गई तो हाकिम ने आपको जुटलाया और आपकी तहरीर को फाड़ दिया। पूरे 2 घंटे रसूल अल्लाह की बेटी दरबार में खड़ी रही। और ये जो जितने भी लोग आप देख रहे हो ये सब साहबी रसूल के साथ थे। वो फातिमा जब
रसूल अल्लाह के घर में फातिमा दाखिल होती थी तो रसूल अल्लाह खड़े हो जाते, यानी रसूल अल्लाह जिसकी ताज़ीम करे वो है फातिमा। लेकिन लानत हो ऐसे साहबी पर, लानत हो ऐसे हाकिम पर जिसने फातिमा ज़हरा को जुटलाया। मैं के ऊपर ज़िंदगी भर तक लानत करूँगा, खुदा रसूल की भी लानत हो ऐसे साहबी रसूल पर जिसने फातिमा की अजमत को नहीं समझा। ये साहबी इसको हमारे मुसलमान नबी का साहबी कहते हैं। लानत हो ऐसे साहबी पर, लानत हो ऐसे साहबी पर उसको रसूलुल्लाह की बेटी की अजमत को नहीं मालूम चला तो ऐसा कैसा साहबी, और हम उसको पहला खलीफा मानता है। अरे लानत हो खुदा की, लानत हो। पूरी मंजरकशी माशाल्लाह मौलाना सबको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मंजिल थी 260 मौक़िफ़ वो आ चुका है। वो आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये 260 मौक़िफ़ हैं जो कि हिंदुस्तान की सरज़मीन राजस्थान अजमेर शरीफ तारागढ़ पे मौजूद जो बारगाह है सरकार मीरा सैयद हुसैन की, जो बानी अज़ा भी है, उनके नाम से यहाँ पर मौक़िफ़ लगाया गया है। तमाम खुतामीन, तमाम गुलामान मीरा की जानिब से मैं बारगाह मौला में दुआ गो हूँ। मौला हम सब की इस खिदमत को कबूल करे और मौला हुसैन हमें हमेशा ऐसी तौफीक दे कि हम इमाम हुसैन के ज़ाहिर की खिदमत करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँच चुके हैं और 260 मौक़िफ़ पे हमारा स्टे रहेगा। हम कल शाम को या नमाज फ़ज्र अदा करके यहाँ से रवाना होंगे और अभी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, यहाँ के मौक़िफ़ दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह कल यहाँ की खिदमत की वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बाहर की जो खिदमत हो रही है, जो खुदाम हज़रात कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको देखो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खुदामान मीरा है इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मौला इनकी खिदमत को कबूल करे, मौला इन सबको सलामत रखे इंशाल्लाह। ये 260 मौक़िफ़ हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौक़िफ़ है 260। इंशाल्लाह हम यहाँ पर अब स्टे करेंगे, हमारा यहाँ स्टे रहेगा। फिर इंशाल्लाह कल यहाँ की खिदमत इस तरीके से हो रही और यहाँ पर क्या क्या नेमतें हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मौजूद हूँ 260 मौक़िफ़ नंबर पर और हमारे पूरे तारागढ़ का जो सबसे छोटा, सबसे जो मासूम ज़वार है वो हमारे भाई का लड़का है, नफीस भाई का, जो अभी ज़ाहिर को पानी पिला रहा है। इस उम्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ, ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और इंशाल्लाह अभी मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, उसको दिखा रहा हूँ तो किस तरीके से एक ज़ाहिर हुसैन की खिदमत को अंजाम दे रहा है। मौला उसको सलामत रखें, उसके माँ बाप को सलामत रखें और उम्र दराज करें कि हर साल मौला हुसैन के ज़ाहिर की इंशाल्लाह खिदमत करें। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे भाई का लड़का है। मौला सलामत रखें, खुशहाल रखें बच्चों को। मौला मोहम्मद यासीन मौला हमेशा सलामत रखें और उसकी खिदमत को मौला कबूल करें। हाँ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कल इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा यहाँ की खिदमत और यहाँ की जो मौक़िफ़ कैसा है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। और इंशाल्लाह कल अगर हमें यहाँ रुकना होगा तो हम यहाँ रुकेंगे, वरना हम निकलेंगे आगे के लिए और जो आगे की जो मंजरकशी होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगा।